Students, this is new chapter for class 5 environmental study, class 5 AVS, life of animals. In this chapter, we will study about sense of animals that help them to find food and respond to the environment. What are the animal senses and how they respond to environment? Some example of different things that animal provide us. Some communities that depend on animals for livelihood and the importance of protecting and conserving wildlife. So these are the main points. In this chapter, we will understand all these points. Students क्लास 5 के environmental studies सब्जेक्ट का ये नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ ऑफ एनिमल्स। इसमें हम एनिमल के सेंसेस को और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में समझेंगे। नाउ द टॉपिक एनिमल्स एंड देयर सेंसेस। व्हाट आर द सेंसेस ऑफ एनिमल्स? पिछली क्लास में आपको सेंस ऑर्गन्स समझाए गए थे, ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स एंड हाउ दे रिएक्ट to the environment. Now we study about animal sense organs. Almost all animals, whether they live on land or in water, are blessed with super senses. Their senses help them to adapt to their environment, find other of their kind, find food and be alert, escape danger and live safely. So these are called super senses. जो एनिमल के सेंस होते हैं उन्हें हम सुपर सेंस कहते हैं और ये जो सुपर सेंस होते हैं उन्हें काफ़ी सारी हेल्प करते हैं, जैसे कि किस तरह से वे एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन करते हैं और अपना भोजन ढूंढते हैं। इसके साथ ही किसी खतरे से बचते हैं, अपने तरह के जो एनिमल हैं उनको ढूंढते हैं। तो इस तरह से ये सुपर सेंस इनको ये सारी चीज़ों करने में मदद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन ढूंढते हैं। हियर वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम्पल, स्प्रेड सम फूड ग्रेन्स ऑन द टेरेस, balcony or courtyard of your house or even on empty footpath. In this picture you can see, after some time you will notice that a flock of birds have gathered and started feeding on the food grains. How did this happen? इस तरह से हम एक एक्टिविटी करके समझ सकते हैं कि हम कुछ फूड ग्रेन कहीं पर भी स्प्रेड कर दें, या तो अपनी छत पर या बाहर आंगन में या फिर कहीं फुटपाथ पे किसी रोड के साइड पर। इस तरह से अगर हम फूड ग्रेन डाल देते हैं और थोड़ी सी देर में वहाँ पर हमें बहुत सारे पक्षियों का झुंड दिखाई देगा और वो उसे खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो हाउ दिस हैपन, ये किस तरह से होता है? एनिमल्स सर्च फॉर फूड इन देयर सराउंडिंग्स। जो एनिमल होते हैं अपने आसपास में फूड की सर्चिंग करते हैं। देयर सुपर सेंसेस हेल्प देम इन द सर्च. So the super sense help them to do this work. Now we will understand this topic, how super sense help them. Let us find out how some animals use their senses to find food. इस तरह से हम समझेंगे कि किस तरह एनिमल अपने सुपर सेंस यूज करके और फूड की सर्चिंग करते हैं। Here are some examples by which we understand the super senses of animals. First of all, the example of ant. When I smell some food, I go to collect it, leaving a smell on the ground. Other ants follow the smell to find the way to the food. जब कभी चींटी को कुछ फूड आइटम मिलता है तो वह उसे ले लेती है और उसके साथ एक स्मेल वहाँ पर स्प्रेड कर देती है, जिससे कि बाकी दूसरी चींटियाँ उसको फॉलो करके वहाँ पहुँच जाती हैं और उस तरह से फूड आइटम को वे कलेक्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत पावरफुल होता है। सो द सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी पावरफुल इन द एंट्स. नाउ अदर एग्जांपल ऑफ हनी बी. I feed on flower pollen and nectar. I have taste receptors on my forelimbs and antennae.
My sense of smell helps me to detect a scent even when I am in flight. So students, you can see in the honeybee, they have taste receptors and also antennae. Both help them to search the food. Now the next earthworm, I can sense light and sound. Taste receptors are all over my body. They help me to find food in the soil. So in earthworm, sense of taste is very powerful, and also they have taste receptors all over the body and also help to find food from the soil. This is a picture of catfish. I have taste buds all over the body including my whiskers. कैटफिश को टेस्ट बड्स होते हैं और उसके जो विस्कर्स होते हैं उस पर भी टेस्ट बड होते हैं. आई कैन सेंस फूड इन मडी वाटर्स एंड इवन इन द डार्क. मडी वाटर और जो डार्क प्लेस है वहाँ पर भी वो फूड को सेंस करते हैं. तो इस तरह से जो कैटफिश है उसके पास टेस्ट बड होते हैं जिससे कि वो फूड को सेंस कर लेती है. जहाँ पर भी फूड होता है वो उसे सर्च कर लेती है. नाउ द नेक्स्ट, फैल्कॉन. दिस इज अ पिक्चर ऑफ फैल्कॉन. आई हैव शार्प आई साइट. फैल्कॉन को शार्प आई साइट होती है, ये दूर से भी अच्छे से देख सकते हैं. आई कैन स्पॉट इवन अ स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई अबाउ एंड देन फ्लाई डाउन सुपर फास्ट टू कैच इट. जमीन पर पड़े हुए किसी भी फूड आइटम को, प्रे को ये देख लेते हैं, बहुत दूर से देखते हैं और उसे कैच कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं. तो बहुत हाइट से भी ये देख पाते हैं. तो इनका जो आईसाइट है वो बहुत पावरफुल होता है. देयर आईसाइट इज वेरी पावरफुल एंड दे कैन डिटेक्ट द प्रे फ्रॉम हाई. नाउ द नेक्स्ट, मॉस्किटो. I feed on human blood. I get attracted to people by their body odor, carbon dioxide and body heat. They identify human body by body odor, carbon dioxide and body heat. Now the new topic, super senses and animal habits. What are the super senses and What are the animal habits? किस तरह से एनिमल के सुपर सेंस होते हैं और वे किस तरह से उन्हें यूज करते हैं. इंसेक्ट्स हैव शार्प सेंस. इंसेक्ट को शार्प सेंसेस होते हैं. सम ऑफ देम कैन सी वेल इवन इन द डार्क. सम कैन डिटेक्ट स्मेल, लाइट, साउंड, वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स, while some have a super senses of taste. कुछ एनिमल में या कुछ इंसेक्ट्स में सेंस ऑफ स्मेल पावरफुल होती है, किसी में सेंस ऑफ टेस्ट पावरफुल होते हैं, किसी एनिमल में या इंसेक्ट में सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट, ये अलग अलग पावरफुल होते हैं. नियरली ऑल इंसेक्ट्स सच एज एंट्स, बीज, बटरफ्लाइज, grasshoppers and cockroaches have a pair of antennae on their heads. जो एंड्स, बीज, बटरफ्लाई, ग्रासहोपर और कॉकरोच होते हैं इनके पास एंटीने होते हैं, एक पेयर एंटीने होते हैं which they use to touch and smell the world around them, जिससे कि वे आसपास को फील करते हैं. स्नेक्स आर रेप्टाइल्स. जो स्नेक्स होते हैं वो रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं. A reptile is an animal that has dry, scaly skin and lay eggs. जो स्नेक्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो स्केली होती है और ड्राई होती है और ये ले एग्स करते हैं. They do not have external ears. इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं and can detect only ground vibrations. ये केवल वाइब्रेशंस को पहचानते हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं और इसके अलावा इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. स्नेक्स हैव पुअर आईसाइट बट सम ऑफ देम कैन डिटेक्ट हीट. स्नेक्स की जो आईसाइट होती है वो पुअर होती है, वे अच्छे से देख नहीं सकते हैं,
लेकिन वे हीट को डिटेक्ट करते हैं। दे यूज देयर टंग टू ब्रिंग स्मेल्स एंड टेस्ट इनटू देयर माउथ। दे यूज देयर टंग टू ब्रिंग स्मेल्स एंड टेस्ट इनटू द माउथ। इस तरह से वे जो टंग है उसको यूज करके स्मेल और टेस्ट करते हैं, जिससे कि आसपास की चीजों को वो फील करते हैं। Here's the next eagle. Almost all birds have an excellent sight and most dependent on their eyes to find food. जो भी बर्ड्स होते हैं उनकी जो सेंस ऑफ साइट होता है वो पावरफुल होता है, जिससे कि वे बहुत दूर से भी फूड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसे कैच कर लेते हैं। Almost all birds have an excellent sight and most depend on their eyes to find food. An eagle can spot its prey from as much as 1.6 किलोमीटर above the ground. जो ईगल होता है वो 1.6 किलोमीटर की दूरी तक भी प्रे को आइडेंटिफाई कर लेता है। इस तरह से इनकी सेंस ऑफ साइट पावरफुल होती है। जो ईगल होता है वो 1.6 किलोमीटर हाइट तक देख सकता है। An owl's hearing is so good that it can detect and catch prey in complete darkness without using its eyes at all. जो ऑल होता है वो अपने आईज का यूज किए बिना अपनी हियरिंग से चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। तो ऑल की जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो पावरफुल होती है। इस तरह से जो ईगल है उसकी सेंस ऑफ साइट पावरफुल होती है। बैट कैन सी एट नाइट बट दे कैन नॉट सी दैट वेल इन द डे लाइट। जो बैट होते हैं, इस तरह से ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ बैट। बैट्स जो होते हैं वो नाइट में अच्छे से देख सकते हैं और दिन में वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। दे हंट एट नाइट बाय प्रोड्यूसिंग अ टाइप ऑफ साउंड। बैट जो होते हैं वो हंट करने के लिए एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इकोज बैक। जो वे साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट तक टच होकर के वापस आती है। दिस इज कॉल्ड इकोलोकेशन। इसे इकोलोकेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज इकोलोकेशन? बैट्स hunt at night by producing a type of sound that bounce off object and echoes back. This is called echolocation. एक तरह की वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट से टच होकर के वापस आती है। इस तरह से वे ऑब्जेक्ट को फील कर लेते हैं और ये इकोलोकेशन कहलाता है। Their strong sense of hearing helps them to locate food. इस तरह से इनका जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो बहुत पावरफुल होता है, जिससे कि वे फूड को लोकेट करते हैं। नाउ दिस इज स्निफर डॉग। यू कैन सी दिस पिक्चर। बोथ कैट्स एंड डॉग्स हैव विस्कर्स। जो कैट और डॉग होता है उनके यहाँ पर ये विस्कर्स पाए जाते हैं। डॉग्स एंड कैट्स हैव अ keen sense of smell that enable them to differentiate between smells. डॉग और कैट को सेंस ऑफ स्मेल पावरफुल होते हैं और ये विस्कर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। इनके माउथ के आसपास में इस तरह से कुछ हेयर्स होते हैं जिन्हें हम विस्कर कहते हैं। Their sense of hearing is sharp too. इनका सेंस ऑफ हियरिंग भी शार्प होता है। With the help of their whiskers, dogs and cats can sense faint sound and smells. बहुत दूर तक के साउंड और स्मेल को भी ये फील कर लेते हैं by the using of whiskers. That is why dogs are used in police and security services. इस तरह से जो डॉग्स होते हैं उन्हें पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज में यूज किया जाता है, जिससे कि वे
किसी भी चीज़ की स्मेल को और साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्निफर डॉग्स हेल्प इन डिटेक्टिंग थीव्स, robbers, lost objects and also to rescue people. स्निफर डॉग्स को थीव्स को पकड़ने के लिए, रॉबर्स को पकड़ने के लिए और जो खोई हुई चीज़ें हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके अलावा दे आर यूज टू रेस्क्यू पीपल। डॉल्फिन है ऑल्सो पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट। इनका जो सेंस ऑफ साइट है और सेंस ऑफ हियरिंग है पावरफुल होता है। Dolphins have a well-developed sense of hearing. They can detect an object from several miles away. सेंस ऑफ हियरिंग इनका पावरफुल होता है और बहुत दूरी तक ये चीज़ों को पहचान सकते हैं। Their sense of eyesight is so sharp. इनका जो सेंस ऑफ साइट होता है बहुत शार्प होता है। That they can see clearly both in and out of water. पानी के अंदर और बाहर अच्छे से देख सकते हैं। Dolphins are also one of the most intelligent animal on earth. Dolphins जो होते हैं one of the most intelligent animals होते हैं अर्थ पर।